श्वेता सिन्हा फ्रॉम दी SQ टॉक शो और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर मदन मोहित भारद्वाज and he is the founder of She Wings and also he is launching India's all-women cancer screening center. So let's get into the conversation with Madan. Hello Madan, how are you? Hi Shweta, I'm doing well, thank you very much. So we are meeting in the month of May. That's the most important month for all the women because we are just a few days ahead than the menstrual hygiene day. So because She Wings journey started with menstrual hygiene itself and now moving on to cancer, I'm looking forward to have some interesting conversation with you. Great. So now this is the first question that is coming to you, Madan. First is, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में. Who are you? I'm just one of those who are building up something for the future generation. I'm just out of those who are building something better for our community. I'm just one of those who are betting something for Mother Earth. So our entire focus is on women health, from menstrual hygiene to cancer screening to a lot of initiatives on cancer to women health, because we believe a country's GDP is, it's more related to a women's health. और उस देश की GDP बढ़ ही नहीं सकती जहाँ की महिलाओं का जो हेल्थ है वो लिस्ट में बहुत नीचे हो. तो हमारा we are in 2026 we are looking for a सशक्त नारी एंड विकसित भारत. तो प्रधानमंत्री जी के जो इनिशिएटिव्स हैं, इनफैक्ट जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, हम सब लोग मिलकर ही उसी दिशा में काम कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मेरा भी सपना है मदन कि मैं अपने जो ह्यूमन लाइफ जो मिला है मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ फॉर द विकसित भारत. ग्रेट मदन. So now I would just wanted to understand what is the She Can Foundation. I just saw this. So She Can Scan is our next brand we have launched. She Can Scan is India's first all-women cancer screening center. Okay. Which is a premium boutique hospital where all screening related to women's health from blood, urine to all cancers would be screened. Because we wanted that the way we had, there are a lot of taboos when we started our journey on menstrual hygiene, and there are a lot of taboos related to cancer. We want to break the taboos. We want that all women should come forward for the cancer screening, so that if somebody catches cancer, they could be treated 99.99%, and the treatment cost could be very economical. And with the same directions, our not-for-profit She Wings Foundation is doing a lot of work. We have recently launched a cancer screening bus also, which would do screening related to breast cancer and cervical cancer. So with that regards to our not-for-profit and the company, before She Can Scan came into the existence, we had She Wings Personal Care as a brand, which you could see these sanitary pads, in fact, and these were innovation because this is not India's, I would say, world's first minor-friendly sanitary pad. One of the best product this universe can have for the consumer and for the Mother Earth also. The plan is that we should not fall in place. We should not use any product which would harm your body and the Mother Earth's body, nature's body. Both of us, in fact me and you, while having this conversation, our plan is to tell our viewers, whoever are watching us, that be a very, very responsible consumer while you use any product, because it's not only about your health, it is about the community also, because the way environment is getting changed. We are seeing I would say summers in February, correct, right, and rains in May. That's entirely changes because Mother Earth is not liking what we have done. So the plan is to tell the entire generation who started using a product, and this product could be used by mother and the young girl child and whomsoever they wanted to use. That's what I would tell your readers and our viewers to use it whenever you see
this product anywhere. And Madan, I should mention that I have used your product. I mean, I guess there was one kind of canopy set up in Yes. Gore City Mall. जब वहाँ पर we have used it, and I personally felt that yes, this is one of the best thing that has happened Thank to you me. very much. Yeah, great. So I have one question, Madan, and what my viewers would also like to know. Since you are male, why into this? And what inspired you get into that? Because this is such a taboo that we normally don't speak about it, but you have established your organization around this. So why? So journey, as I said that in a lot of my interviews, I said that I was a journalist. I was covering a story in Bihar. I found there was some 5 ladies died in the same blade because of something. Then I inquired, my inquisitiveness got to know that these ladies died because of they used to use old blouse which has got holes, which has got iron and rust. They died because of septic. It was long back, maybe a decade back, 2012, 13 I'm talking about, 10, 12, 13 I'm talking about. In that time, they were having metros, flyovers, underpasses. So we thought that this could not be a real development. Real development is when someone get to choose themselves for their body. The overall health, I mean, आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमको ये समझना पड़े कि कपड़े पत्ते और घास सैनिटरी पैड की जगह लगानी पड़े, वो टाइम था जो हम लोगों ने, I mean, we did lot of efforts in roaming around villages, communities में जाना, slums में जाना. In fact, I'm grateful for the government also कि सरकार ने भी इसको सीरियस लिया और अब इतना काम किया कि हम लोग ये one of the reason है कि आप देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के केसेस HPV वैक्सीनेशन प्लस गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने की वजह से कम हुए. तो उस जर्नी के बाद से हम लोगों को ऑलमोस्ट जब 30 लाख महिलाओं को हम लोग हर साल रीच आउट करते हैं, उनको हमको समझ में आया कि समस्या उस वक्त दूसरी थी और आज 2025 में दूसरी है. अभी जो है जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल, खान पान और सब चीजें हम लोग हैं, उस हिसाब से मुझे कहना नहीं चाहिए, बट वो सब चीजें हर घर कैंसर की ओर बढ़ रही हैं. हर घर कैंसर जो फैल रहा है, अब हमको टैबू है और हमको इसको फाइट करना है. और इसीलिए हम चाहते हैं कि स्क्रीनिंग जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमको सुन रहे हैं या आपका जो शो देख रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग के लिए दे शुड कम फॉरवर्ड. क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी को कैंसर निकलता है स्टेज 1 में, तो वो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में ट्रीट हो सकता है. पेशेंट भी 99.9% रिकवर होता है. और हम स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं. 2-4 साल बाद सिम्टम्स इतने ज्यादा गहरे होते हैं, तब हमको समझ में आता है कि स्टेज 4 है. उस समय पेशेंट भी नहीं बचेगा और प्राइसिंग भी ट्रीटमेंट की हाई एक्सपेंसिव रहेगी. बिल्कुल. और मदन, मैं आपको अभी यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ. माई मदर इन लॉ fought with cancer for 5 years and this was the breast cancer only. But उनका जब डिटेक्ट हुआ, that was level 4B. So डॉक्टर ने सिर्फ उनको 5 साल दिया and then she didn't survive. And मैं खुद के मेरे जीवन में इतने सारे कैंसर के इवेंट्स हुए हैं. जैसे माई फादर डाइड आउट ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर. माई बड़े पापा डाइड आउट ऑफ रेक्टम कैंसर. And I was also diagnosed with a fibroid in my breast when I was very young, 20 years. Okay. And उस समय भी biopsy वगैरह हुआ. So this is one of the, universe has sent me to be one of the reason in this awareness cause. Thanks a lot, Madan. We should be grateful that all of us would take our endeavors to fight with cancer, to break taboos, and people would. I'm sure that we are getting a lot of love. People are reaching out to us for this screening programs. No, absolutely. And with this, the SQ talk show, I'm sure lot of people will get the awareness. So now I'm coming to the next question. How does your organization earn today? So, as in, you see our products are available in most of the premium brands. We have this month only we've got a Blinkit also. Okay. So we are just 5 minutes away wherever you are, you order our product. So but the revenue is coming from mostly from a B2B market, and especially
from, like, we are all there in the metro stations, which you will find in BMRC stores. You will find us in Sharda, Amity, Lovely Professional, all these premium universities, we are there. And you will find us in One Bharat Pharmacy, you will find us in 24/7 in and outs, Globe stores, W. Smiths. You will find us at the airport also, you will find us. So the revenue is coming from the, of course, sanitary pad. And some part of the revenue we are also spending on the philanthropy, which we are donating it to our foundation, and we are taking ahead this as a cause for cancer. Very nice. अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, what is the biggest challenge that you faced when you started this journey? Sustainability has been one of the bigger challenge, because when you are into not-for-profit, or when you take your business more inclined towards charities and philanthropy, then sustainability becomes an issue. Correct. Because for us, we treat each patient like a God-sent person with utmost care. We have the best doctors available in the team. Our focus is not to make revenue. I'm being very, very honest on this show today. The focus, what I understood after having a conversation, is to create the impact. Create the impact. So when I look at some of the success, for me especially, for most of the people, success may be the balance sheets, profits, how much revenue they earn. I look at success as the kind of impact we have created, the kind of lives we have changed, the kind of people we have employed. That's more important. And people who are watching us now, I look at the way the people would start celebrating social entrepreneurs or entrepreneurs over Bollywood celebrities. We would have a more better economy. We'll have a great GDP. Absolutely. Because in real life, you see, taking risk when it comes to sustainability, when it comes to not-for-profit, when it comes to any business, it is very, very challenging. We are not here to, of course, we are here to do a business also, but not to compromise with anyone's, integrity, our integrity, anyone's health. And that's the reason we wanted that whoever is coming to us with a belief that we had almost worked for more than a decade for a not-for-profit. We have got so much of love from the people, from government, from institutions. So the focus is to, be a patient-oriented brand. The focus is towards a consumer-oriented brand who could solve problems related to consumer. And these are the real problem of India, especially. The next question is, what impact has your organization created? We as a company, we are the first ever company who has created, who has understood a need of a consumer. When a 12 or 14-year-old girl and a 45-year-old lady, they use a different face cream, they use a different shampoo, the lingerie brands are different. Why were they being forced to use same sanitary pad? Whereas their entire cycle, if you look at it, is different, the blood flow is different, the vulva size is totally different. So आज के ज़माने में 2026 में दादी वाला नानी वाला प्रोडक्ट क्यों यूज करना जब आपके पास इतना अच्छा ब्रांड अवेलेबल है. And that's the impact that whoever had used this product, you trust me, they have switched to their brand and they have been using it. Absolutely. क्योंकि जब मैंने वो 7 महीने पहले यूज करा था, लेकिन उस समय शायद आपके ब्रांड्स वो अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैं उसको दोबारा नहीं परचेज कर पाई. बट सिंस अभी आपने बोला है कि now it is available on Blinkit, so yes, this is now at my home. मदन, तो दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने बिहार की स्टोरी बताई कि वहाँ पे आपने कुछ वुमेन को देखा, ऐसा कुछ और आपने देखा जो आपको रियली अंदर से हर्ट करा एंड यू वांटेड टू डू समथिंग? कोविड के दौरान हम लोग टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ हम लोग काम कर रहे थे. वहाँ we used to give sanitary pads to this lady. She had 3 daughters. She never took sanitary pad from us. तो फिर हमारी टीम ने जब बात किया, we spoke to her
पता लगा कि वो हमसे बात करने में थोड़ा सा उनको रिलेक्टेंट बात नहीं करना चाहती थी। तो लोकल वहाँ आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, उनसे उन्होंने बात किया, उनको बताया कि मेरे घर में हमारे पास 2 जोड़ी वो है अंडरवेयर है। तो हमारे अंडर गारमेंट्स क्या होते हैं कि जिसको भी साइकिल महीना होता है वो अंडर गारमेंट पहनती है। अब जिसके पास अंडर गारमेंट नहीं है वो सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करेगी। तो हमको समझ में आया कि मतलब सैनिटरी पैड तो बहुत दूर की बात है, बेसिक सा जो विमेन का डिग्निटी कंफर्ट या हेल्थ है वो अंडर गारमेंट से रिलेटेड होता है। तो हमने उस समय सैनिटरी पैड के साथ साथ डोनेट ब्रा एंड पैंटी कैंपेन चलाया, जिसके 4-5 दिन चले। तो लोगों ने उसमें बहुत लोगों ने हमारे को वो अपने यूजीस जो थे अच्छी कंडीशंस में उनको देना शुरू किया, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 20-25 हज़ार मुझे लगता है फीमेल्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया उस वक्त, तब से लेकर अब तक। बात करते करते जब हम लोग हाइजीन की बात कर रहे थे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रहे थे, तब हमको समझ में आया कि ये कैंसर तो एक महामारी जैसा अभी हमारे यहाँ आ चुका है। हिंदुस्तान में 145 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, 145 करोड़, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 150 करोड़ हो चुकी होगी, जो कि 1/3 ऑफ 600 करोड़ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है। तो 600 करोड़ में 150 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है। और इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारे पास तो मेडिकल सेटअप इतने अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स इतने अवेलेबल नहीं है, और लोग मर रहे हैं बिना इलाज के। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या बीमारी हुई है। सब चीज़ों का तो हम लोग टैकल कर रहे हैं अच्छे से, बट कैंसर को लेके जिस तरीके से ये एक महामारी की तरह फैल रहा है, उस तरीके से हमको बहुत काम करना होगा। क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पता लग जाए तो आप तो सुरक्षित हो सकते हैं। तो यानी प्रॉब्लम ये है अभी आज की डेट में कि कैंसर को लेके टैबू है कि जैसे जितने पेशेंट से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जब उनसे आप मिलेंगे तो किसी भी कैंसर पेशेंट को सबसे पहला फीलिंग आता है कि मैंने ऐसे क्या खराब काम किए, वो कर्म से जोड़ देते हैं। मेरे ऐसे क्या कर्म रहे कि आज मुझे दिन देखने पड़ रहे हैं। करेक्ट। और कुछ तो मेरी कमी रही होगी। वो अपने पुराने जीवन को सोचते हैं क्या रहा है, ऐसा किसकी दुआ बदुआ लगी। तो वो समझ पाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये किसी को भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपके कर्मों से लेना देना हो सकता है, 1-2% हो, बट 98-99% आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग कराना है। जैसे आप ब्लड यूरिन कराते हैं, क्योंकि कैंसर ना होने के बहुत सारे होने के भी कारण हैं, और 20% केसेस में कैंसर किन वजहों से हो रहा है ये वजह भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20-25 साल पहले सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा होता था। करेक्ट। अब 2026 में हम देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर पे हमने बहुत काबू किया है, और अब ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है। This should not be taken as a controversy, but yes, there are scientifically proven facts which says that the cancer would have been due to lot of reasons. For example, for a breast cancer, I would say there is this lady who's staying in a small village in Bihar, and there is another lady who's staying in California. Okay. And I'm just sharing the two lifestyles of a woman as a scientifically proven theory. This lady in California starts her day at 8 o'clock, go to the kitchen, take the bottled milk and then bread and microwave oven में गरम किया, and वहाँ पे उसने packed food लिया, then she took a carsonic मीट लिया, उसने प्रोसेस्ड मीट लिया, और ऐसे सारे प्रोसेस्ड फूड लेने के बाद ऑफिस गई। इसी में ऑफिस एनवायरनमेंट में काम किया, वापस आई, वापस आने के बाद 60 ml के 3 ड्रिंक्स लिए, और दिन भर में 15 सिगरेट ली, 10 से 15 सिगरेट ली। और दिस लेडी, इसकी एज भी मान लीजिए 38 साल है। इन्होंने शी इज नॉट गॉट मैरिड ऑल्सो, शी इज नॉट हैड किड्स ऑल्सो। और मान लीजिए इफ शी हैड married, she got married also, she did not have a kids also, or even if she had kids also, she did not breastfeed them also. अब दूसरी लेडी जो एक स्मॉल विलेज में इंडिया में रहती है, छोटे टाउन में रहती है, वो सुबह 6 बजे उठती है, छत पे कपड़े डालने जाती है, फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज करती है, अपने जाना, फिर बच्चों का टिफिन पैक करना,
हस्बैंड का टिफिन पैक करना, फिर अपना खुद काम के निकलना। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग टू लाइफस्टाइल। तो उसने ऐसा किया और वो फिर अपना ऑफिस गई, ऑफिस से आई, वापस आई, लंच बनाया, छत से कपड़े उठाए, सारे काम किए, ऊपर नीचे 40 बार किया छत से। और ना तो एसी का यूज़ किया उसने, और ना उसने फ्रिज का यूज़ किया। सुबह जो खाना बनाया था वो सुबह का खाना था, शाम का खाना अलग था, ठीक है, दूसरा खाना बनाया। हाँ बनाया। और उस लेडी की एज जो है 35 साल है, 35 साल की एज में उसके पास एक बच्चा है जिसको उसने अच्छे से 2-2.5 साल तक फीड 2-2.5 साल तक फीड कराया। बिल्कुल। अब जो दोनों केस स्टडीज में देखा गया कि जो लेडी कैलिफोर्निया की जिसकी लाइफस्टाइल थी, ऐसी लाइफस्टाइल दिल्ली बॉम्बे में भी बहुत फीमेल्स की है। मतलब अब तो नंबर ऑफ फीमेल्स की लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गई है। तो ऐसी फीमेल को कैंसर होने के 80% चांसेस है, ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज है कैंसर फिर। हाँ 80% चांसेस है। और जो फीमेल ये जो छोटे शहर, किसी भी छोटे शहर में, टाउन में थी, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा था, इनको कैंसर होने का 10% चांस है। अब रहता है कि 20% चांस ऐसे भी हैं कि कई साध्वीज हैं जिन्होंने कहा हम तो सुबह 4 बजे उठे, हमने आज तक सात्विक फूड खाया, पैकेज फूड नहीं खाया, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड ड्रिंक कभी नहीं लिया, हमने तो आज तक फिजिकल इंटरकोर्स रिलेशनशिप्स भी नहीं किए बहुत, और हमने मतलब जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी, उनको भी कैंसर होते हैं। तो मैंने बोला 20% वो चांसेस ऐसे फीमेल्स के भी हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो रीजंस पता नहीं है। अब आपके सामने दो सिचुएशन है कि आप इस डर से कि आपको कैंसर हो सकता है, अरे मुझे कैंसर हो गया तो मेरे बच्चों का, मेरा, घर का, पति का, माँ बाप का क्या होगा, या तो हम ऐसे परेशान हो गए, या हम स्क्रीनिंग के साथ कि यार चलो कॉन्शियस डिसीजन ले, हाँ एक डिसीजन ले कि यार चलो डरना क्या है, कराते हैं, होता है तो ट्रीटमेंट होगा और हम ठीक हो जाएंगे। बिकॉज आप देखिए हिंदुस्तान में कैंसर से डेथ्स जो हैं कहीं ज्यादा हैं। बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, डेथ्स नहीं है। तो यानी कि जो कैंसर के पेशेंट्स ज्यादा हैं, मतलब स्टेज 1 में लोगों को पता लग रहा है, तो वो ट्रीट होकर ठीक हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है, डेथ ज्यादा है, यानी कि हमारे यहाँ पे पता ही लगता है बहुत लेट से नहीं पता लगता है। तो माय पॉइंट इज कि हम लोगों को एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और सबको जो लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को, श्वेता जी की जितनी फैन फॉलोइंग है, उन सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना डर के स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, और उसके अलावा स्क्रीनिंग से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू मदन। और मदन, अब हम लोग इंटरव्यू के एंड में पहुंच चुके हैं, तो मैं कुछ मिथ्स के बारे में आपसे बात करूंगी और लास्ट में आप मेरे को फाइनल मैसेज दीजिएगा हमारे ऑडियंस को। तो कुछ मिथ के बारे में आप बताइए। जैसे मुझे खुद को ऐसे लगता था आपसे मिलने से पहले कि ये जो मैमोग्राम वगैरह होता है, इसको कराने से शायद जो अगर मुझे नहीं भी है तो ये हो सकता है। देखिए सबसे बड़ा वन ऑफ द मिथ है जो आपने बोला कि मैमोग्राम नहीं कराना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 35 के बाद, इनफैक्ट इन योर 40s ऑल्सो, 35 के बाद मैमोग्राम इज मस्ट। आपको हर 2-3 साल में मैमोग्राम कराना चाहिए। नंबर 1, आप लैक्टेटिंग मदर हैं या प्रेग्नेंट हैं तब आपको मैमोग्राम नहीं कराना है। ओके। दूसरा, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आप शादीशुदा नहीं भी हैं, तब भी आपको 35 के बाद, 40 के बाद पेप स्मेयर कराना ही कराना है। मैं बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट जो मेरी फ्रेंड्स हैं या जो हमारी कलीग्स हैं, मैं उनको भी, जब भी मेरा उनसे डिस्कशन होता है तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि आपको अपने पेशेंट को रिकमेंडेशन देना चाहिए कि आपको मेमो कराना है 2-3 साल में एक बार, और पेप स्मेयर भी आपको 2-3 साल में एक बार कराना है। तो ये हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा एक और मिथ है कि जैसे लोगों को लगता है कि जो बायोप्सी, नीडल बायोप्सी रिमूवल है, तो उनको लगता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हम लोग जैसे नीडल बायोप्सी कराया और वो नीडल से निकालते हैं तो स्प्रेड हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। नीडल बायोप्सी रिमूवल सर्जरी से कैंसर नहीं फैलता। कैंसर एक मिथ है कि HPV वैक्सीनेशन जो होता है
एचपीवी वैक्सीनेशन से कैंसर का रिस्क कम होता है, ये फैक्ट है, ओके बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इसलिए जो यंग गर्ल्स हैं आप घर में किसी की फैमिली में, उनका एचपीवी वैक्सीनेशन मस्ट कर देना चाहिए और मैंडेटरी कर देना चाहिए, ये एक फैक्ट है। अब जैसे कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो फीमेल में मोस्टली रहते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो अंडरवायर ब्राज होती है, अंडरवायर ब्राज से आपकी लिम्फ जो है वो ब्लॉक होती हैं और उनसे होता है, तो नहीं, अंडरवायर ब्राज से नहीं होता है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि अब ये पता नहीं, मैंने बहुत पेशेंट से ऐसा सुना है कि किसी को अगर कैंसर है और कैंसर पेशेंट के साथ हम बैठे, अच्छा वो कम्युनिकेट हो जाएगा, कि हमने उनके साथ खाना खाया, चाय पिया, इवन देन वी हैड अ फिजिकल इंटरकोर्स आल्सो, नहीं कैंसर नहीं फैलेगा, तो कैंसर नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग अपनी रिश्तेदारियों में जाना बंद कर देते हैं, आप उनका कैंसर है, खाना नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, तो ऐसा ना होने भी हो जाए। पढ़े लिखे लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईली एजुकेटेड, अवेयरनेस नहीं है मतलब, तो कैंसर ऐसे नहीं फैलता, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा मिथ है, सॉरी, कैंसर ऐसे नहीं फैलेगा। तो इस पूरी की पूरी, जैसे एक और बड़ा फैक्ट है कि केमिकली ट्रीटेड ब्रोकली, केमिकली ट्रीटेड हल्दी, केमिकली ट्रीटेड एनी, ये मसाले जितने रहते हैं, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड मिल्क, प्रोसेस्ड फूड, ये जो है ग्रेड 1 कार्सिनोजेनिक होता है, यानी इनसे कैंसर फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो भी माँ बाप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और वो अपने बच्चे को अगर चिप्स या पैकेज्ड फूड कुछ भी ऐसा देते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि जो बच्चे आज खा रहे हैं तो लक्षण तो 20-25 साल बाद बाद आएंगे, ही दिखेगा, क्योंकि शायद मेरे आपके बचपन में हमने इतने चिप्स नहीं खाए हैं, नहीं, हमने कहा, हमने चिप्स ही नहीं खाए थे उस समय। हमने कॉलेज में आने चिप्स के भी बाद खाए थे तो मम्मी घर पे बनाती थी, हाँ, वो पापड़ तलती चलते थी, थे, वो पापड़ वो चलते थे, फ्रेश होते थे। बिल्कुल। तो अभी भी अगर जो भी इसको देख रहा है, अगर आपको बच्चों को चिप्स देना है तो आप फ्रेश वाले दीजिए, राइट, फ्रेश वाला चिप्स दीजिए, फ्रेश वाले पापड़ दीजिए। और बताइए मदन, हम लोग अननोइंगली उनको कैंसर की तरफ धकेल रहे हैं, वो तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, मतलब जिसको भी ऐसा लगता है कि बच्चों को चिप्स दिलाने से प्रेम मोहब्बत आप दिखा रहे हो, खुश हो जाएंगे, आप उन बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो, आप उनको मतलब ऐसा फूड देना ही नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ लेकिन घर मतलब का, हम लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है। तो आप जैसे लोग पॉडकास्ट, बाकी आप आपकी तरह बाकी लोग अगर पॉडकास्ट करें, ऐसे शोज करें, तो ये जो इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो जो भी आप घर में, मुझे ऐसा लगता है कि आप घर में बच्चे को छोले भटूरे खिला दें, घर में कुछ भी खिला दें, वो 100% बेटर है बाहर के फूड से। तो सिमिलरली जैसे कि सैनिटरी पैड, जिन फीमेल्स ने 20-25 साल यूज किया प्लास्टिक वाला, बिल्कुल ठीक है, तो 25 साल पहले जिसने यूज किया, मान लीजिए एक फीमेल जिसकी पैदाइश 1980s की रही, तो 1980s वाली ने 1990-95 में आके सैनिटरी पैड शुरू किया, 95 में, उस समय साइकिल्स लेट होती थी, अभी करेक्ट, तो 95 वाली ने यूज किया, 80s वाली ने, 90s वाली ने, तो उसने अपनी लाइफ में आज तक लगा लीजिए 25 साल हो गया उसको प्लास्टिक यूज करते हुए। इमेजिन कीजिए कि आप रात में प्लास्टिक को अपने फेस पे लगाएं और सुबह उठ के अपने फेस को देखिएगा तो आपका फेस पूरा सॉलो हो जाएगा और उसमें आपको समझ में आएगा डिफरेंस। आई एम सो शॉक्ड that how can a female put a plastic for 5 days regularly on the most sensitive part of the body, है ना। अब ये it is one of the factor and one of the reason कि जो infertility का मार्केट है इंडिया में, वो कई हजार करोड़ का ब्रांड बना चुके हैं infertility मार्केट। तो infertility में हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्लास्टिक का सैनिटरी पैड जो है या प्लास्टिक जो है, इट इज one of the reason which may increase the chances of the infertility. उनका योगदान रहा है मतलब 100%। तो यानी कि आप आज सिगरेट पिएंगे तो आज कैंसर नहीं होगा ना, अगर आज आपने पिया तो अभी 1 घंटे बाद कैंसर नहीं होगा। आपने 20-25 साल यूज किया तो चांसेस हैं आपके, ऐसा जरूरी नहीं हो, बट आप रिस्क फैक्टर आपका बढ़ता है। सिमिलरली जो भी लोग सैनिटरी पैड प्लास्टिक वाला यूज कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि प्रोलॉन्ग पीरियड 7-10 साल के यूज करने के बाद उनमें से 50% लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज 20 साल पहले आपने कहा इनफर्टिलिटी इश्यूज होने थे, बिल्कुल नहीं। तो जो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक से सैनिटरी पैड
अगर आप यूज कर रहे हैं और उसको प्रोलॉन्ग पीरियड में यूज किया तो इनफर्टिलिटी बोल दीजिए उसको, आईवीएफ बोल दीजिए, या हिंदी में हम लोग बांझपन बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें बढ़ती हैं और ये इस कदर बढ़ती हैं कि आपको समझ में आता है कि यार 20 साल से मैं यूज करती आ रही हूँ, तो सिगरेट पीने से जैसे तुरंत कैंसर नहीं हो सकता, ऐसे ही सैनिटरी पैड आज लगाने से नहीं। तो आज जो भी अपनी लाइफस्टाइल में छोटा छोटा चेंज करना है, हमको बहुत बड़े चेंज नहीं करने लाइफस्टाइल में कि हम साधु सन्यासी बन के हिमालय पे चले जाए, नहीं, आप क्या यूज कर रहे हो आपको देखना चाहिए। लाइफस्टाइल आपको अपना इंप्रूव करना होगा, फूड हैबिट्स इंक्रीज करनी होगी। एंड श्वेता, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका डिस्कशन हर घर में हो जाना चाहिए, अब मुझे लगता है। मदन, आप मुझे बताइए, ये आजकल ना बहुत सारी वुमेन ने ये हेयर नेल एक्सटेंशन करवाती है। सो अभी मैं कुछ रील देख रही थी, क्या उससे भी है आपको नेल के कैंसर, स्किन कैंसर हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? आपने जो सवाल पूछा है ना, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हेयर डाइज, मुझे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, फीमेल्स पूछते हैं हेयर डाइज से, पॉम से, हेयर डाइज से कैंसर होता है या नेल एक्सटेंशन से कैंसर होता है, ये ऐसा अभी कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बट ऑफ कोर्स हेल्थ पे आपकी उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हमको अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, जैसे हमारे संस्कृत में भी बहुत जगह लिखा है ना, अति सर्वत्र वर्ज्य, तो अति कोई भी चीज की गलत है। अब एक है जैसे कि माइक्रोवेव कुक्ड फूड, हाँ, ये एक फैक्ट है। टेफ्लॉन की क्रॉकरी है, हाँ। उससे टेफ्लॉन की क्रॉकरी से कैंसर रिस्क बढ़ता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। तो दूसरा जैसे माइक्रोवेव कुक्ड मील, माइक्रोवेव में खाना 30 सेकंड गर्म करने से नहीं कैंसर होगा, 30 सेकंड आपने 1 मिनट गर्म किया उससे कैंसर नहीं होगा। बट माइक्रोवेव में खाना बनाया उससे कैंसर होगा, चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, जैसे आपने 5 मिनट 10 मिनट के लिए फूड लगाया, उससे आपका चांसेस बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग, जैसे कि बहुत सारी चीजें आजकल जो फीमेल कर रही हैं, जैसे लिपस्टिक्स है, ठीक है। ऑफ कोर्स लिपस्टिक्स जब हम यूज करते हैं तो हमको देखना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे आपकी मैंडेटरीज लिखी होती है कि क्या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत सारे टू मच ऑफ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, आपको ये बहुत ऑर्गेनिकली समझ देना चाहिए कि ये these are not impacting a good result on your health। हाँ, तो आप जितना ही कंज्यूम करेंगे आपको फिर परेशानी होगी। लास्ट मदन आपके लिए है कि आप मेरे ऑडियंस को फाइनल मैसेज क्या देना चाहते हैं? I would say to all the audience whoever is watching us that you must first thing you do in your day to day is to visit www.shivings.com and find out that why this product is making a noise in India, that why it is used. If you are a man or a female, whoever you are, if you love any female member in your family, you should immediately stop any product and start using a product which has got a plastic free top sheet. Of course, a second thing is to join She Can Scan and our together, because we discussed that we are going to spread a lot of community awareness about the cancer now, and we are also going to screen a lot of female who are below poverty line now to join us and to be a part of this journey, because जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाएंगे, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे तभी आप देश के लिए प्यार करते हैं। अगर आप देश को प्यार करते हैं तो वो श्वेता का ये शो देखिए और इसमें जो हमने चीजें डिस्कस की उनको अपनी लाइफ में उतारिए, और अगर आप किसी भी फीमेल को अपनी फैमिली में मोटिवेट कर सकते हैं कि उनको, मेल फीमेल दोनों को इनफैक्ट, कि उनको स्क्रीनिंग करानी है कैंसर की, तो ये काम भी आप उतना ही शिद्दत से कीजिए और इसको मैंडेटरी करा लीजिए, so that all of us could be happy, healthy. Thank you. Absolutely. और ये हमारा विकसित भारत के तरफ में एक बहुत बड़ा योगदान है कि जब तक हर इंडिविजुअल वो हेल्दी नहीं हो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो इसके साथ ही मदन, थैंक यू वेरी मच फॉर द अमेजिंग इंटरव्यू एंड द कम्युनिकेशन दैट यू हैव गिवन। ये बिल्कुल SQ टॉक शो आप देखते रहिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशंस लेते रहिए। थैंक यू।